This session is powered by the series of online webinar by Inquiry Connect. Today we are talking about uh, on the topic forecasting 2024 and beyond Russia-Ukraine conflict and its effect on world economy. Me, as a convener of Inquiry Connect, Francis Saraswat, welcome you all in this platform. Before we start, I have to introduce what is all about Inquiry Connect it is. Inquiry Connect is a webinar series started by a PhD research scholars of the Central University of Gujarat, which works as an independent platform to enrich academic culture. Inquiry Connect is a vibrant student collaboration program that transcends the boundaries of traditional learning. It's a platform where students, educators, and passionate learners from diverse academic backgrounds come together to share their expertise, insights, and knowledge. Here we celebrate the power of learning with constant encouraging free exchange of ideas. Inquiry Connect expand your horizons and connect with like-minded individuals and contribute to ever-evolving academic excellency. Inquiry Connect, where knowledge unites and curiosity knows no bound. Before we start it further, I like to introduce speaker of this today talk, Mr. Rajkamal. Rajkamal is an PhD scholar currently pursuing his PhD from Department of Gandhian Thought and Peace Studies, Central University of Gujarat. From his previous background of education, he has done his BCom from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Banaras, Uttar Pradesh. Later, he done his masters in from School for International Studies, Central University of Gujarat itself. Now he is pursuing PhD. From last 3 years, he is working from different projects and regarding Russia and Ukraine conflict. He is in more expertise toward this topic. And as per the agenda of this today talk, I have to begin with the agenda of this today talk, which is again I am going to paste here in the text box. So, Rajkamal, you have 45 plus minutes in which you have to talk about the particular agenda, that is overview of the Russia-Ukraine conflict, second economic implication for conflict, third geopolitical implications, fourth forecasting what is the future, and lastly we have a Q&A session in this session. And the Q&A session is of 10 minutes and then we have concluding the session. So I request you to begin this session and thank you for joining us on Inquiry Connect. So, good afternoon to all. My name is Raj Kamal. So, today I'm going to just I'm going to just share my screen. So, just wait a minute. So is screen share? Hello, Pranjal. Yeah. It's working. It's working. Yeah. Wait a minute. स्क्रीन शेयर हो रहा है जल Yeah, it's working. It's working. It's हेलो working. It's working. It's working. हेलो स्क्रीन शेयर हो रहा है हो रहा है. वेट अ मिनट हो रहा है. सो स्क्रीन शेयर हो रहा है प्लीज आप लोग एक बार हो रहा है. बताएंगे मुझे हेलो Yes. so today today we are going to just discuss about our topic forecasting 2024 and beyond Russia Ukraine conflicts ongoing impact on the world economy. So let's begin. So हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के
बारे में बात करें उससे पहले हमें यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। सो बेसिकली यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में अगर हमको अच्छी तरीके से अगर पता होगा उसके बाद ही हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। सो दिस इज होल यूरोपियन कॉन्टिनेंट मीन्स, अगर हम यहाँ से इसे शफल कर देता हूँ, सो ये यूरोपियन रशिया होता है, ये यूरोपियन रशिया। एंड ये सब जो पार्ट होता है जिसे मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये वेस्टर्न यूरोप एंड दिस इज अ सेंट्रल यूरोप। सो सो यहाँ पर जो मेन फोकस है हमारा, वो आज रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के, कि आखिर में ये क्राइसिस जो होता है वो हुआ क्यों, इरप्ट क्यों हुआ। सो यहाँ पर सबसे मेन चीज है जो आज के बारे में हम बात करेंगे, वो यहाँ पर, क्योंकि रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो अपने आर्गुमेंट हर एक स्पीच जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले भी वो हर एक स्पीच में बोलते थे कि नाटो का वो हमेशा नाम लेते थे, कि एक्सपेंशन ऑफ नाटो के बारे में, कि तो फर्स्ट बेसिकली हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज नाटो। सो यहाँ पर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है यूरोप में, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि यूरोप में, तो यूरोप में कब खत्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो यूरोप में खत्म हुआ था 8 मई 1945 को। दैट्स व्हेयर रशिया एंड यूक्रेन और ईस्ट यूरोप में विक्ट्री डे भी मनाया जाता है 8 ऑफ मई को। तो यहाँ पर जैसे ही वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वैसे ही जो अलाइड पावर थे वो एक दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। दे डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट वन लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेकंड वन दैट इज लेड बाय सोवियत यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ स्टालिन। एंड उसके बाद से हम सिंस 1945 से 1991 तक अगर पूरे वर्ल्ड को देखें तो एक कोल्ड वॉर चलता है, वो सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। और इन यहाँ पर वो एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में अपनी अपनी ब्लॉक बना करके एक सिविल वॉर भी एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत सारे देशों में इन्होंने छेड़ते हैं प्रॉक्सीज के द्वारा। सो यहाँ पर लेकिन अल्टीमेटली जो सोवियत यूनियन होता है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है जब वहां के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव जो होते हैं। और उस टाइम अगर हम बात करें तो यूएस के प्रेसिडेंट अगर कोई होता है तो रोनाल्ड रीगन होते हैं। हालांकि जब 1991 में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ था उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट चेंज हो चुके थे, जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश आ चुके थे। तो ये लेकिन रोनाल्ड रीगन जो एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, वो एक हार्श एक पॉलिसी लिए थे अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, और यहाँ पर इन्होंने स्टार वॉर्स स्टार्ट किया था। दैट इज वाई अगर आप देखना चाहे हॉलीवुड में उस टाइम टॉप गन जैसी मूवी जो थी उनका स्टार्ट हो गया था, या F-16 बननी स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारी पॉप म्यूजिक में भी अगर आप देखें तो सोवियत यूनियन को डिफेम करना यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्ट कर चुका था अंडर द लीडरशिप ऑफ रोनाल्ड रीगन। सो यहाँ पर 1991 में यहाँ पर 1991 में क्या होता है, यहाँ पर सोवियत यूनियन जो होता है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। एंड ये एक कैटास्ट्रोफिक डिसोल्यूशन होता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि छोटा सा देश है वो टूट गया, बल्कि नो, उस टाइम सोवियत यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा देश रहता है, और उससे जो निकल कर 15 देश बाहर आते हैं, जिसमें एक देश आता है रशिया, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो रशिया के साथ साथ और बाकी 14 देश भी निकलते हैं, जस्ट लाइक इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान एंड ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कि निकलते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है, ये सारे देश आजाद तो हो जाते हैं, इनको आजादी तो मिल जाती है, बट यहाँ पर इनके लिए इनको अपने साथ में पोस्ट सोवियत टाइम्स में इनको अपने साथ रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम होता है CIS, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है जिसके पार्ट इंडिया है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत इंडिया था, तो वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंतर्गत, लेकिन ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है जिसको 1991 में बनाया जाता है आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। बट यहाँ पर सबसे मेन चीज है जो कि कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण बनता है, वो होता है एक्सपेंशन ऑफ नाटो, जो कि
जो कि नाटो जो था यूनाइटेड स्टेट्स के लीडरशिप में एक ब्लॉक है, मिलिट्री ब्लॉक है, जस्ट लाइक हम इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी के भी अम्ब्रेला में रख सकते हैं, जिसका मोटो होता है वन फॉर ऑल फॉर वन। मीन्स अगर आप एक देश पर अटैक करते हैं तो वो सारे देश अपने एनिमी के खिलाफ अटैक करेंगे। एक देश पर अटैक मीन्स सारे लोगों पर अटैक, सारे कंट्री पर अटैक। लेकिन जब जैसे ही ये नाटो बनाया जाता है 1949 में, तो 1949 में बनाया जाता है तो ये काफी मतलब उतना बड़ा ये ब्लॉक नहीं होते, जस्ट लाइक इसमें यूनाइटेड स्टेट्स होता है, फिर से कनाडा जो होता है वो नॉर्थ अमेरिका से होता है। बाकी अगर आप देखें तो नॉर्वे फाउंडिंग मेंबर बनता है, आइसलैंड बनता है, डेनमार्क बनता है, फिर से यूके बनता है, फ्रांस बनता है। बस इतना ही सारी कंट्री बनती है और ये इटली बनता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक डेवलपमेंट स्टार्ट जो होता है वो, अगर आप इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो कि स्टार्ट होता है वो अगर आप अच्छे से गौर करें, ध्यान दें, तो स्टार्ट जो होता है वो 1991 के बाद होता है, क्योंकि इसका जो पहला एक्सपेंशन था वो तो 1952 में हुआ था। 1952 में टर्की को एंड ग्रीस को जोड़ा गया था। फिर 1955 में देखें तो 1955 में यहाँ पर वेस्ट जर्मनी को जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो जर्मनी जो है वो दो टुकड़ा में बटा है, जस्ट लाइक अगर ये है वेस्ट एंड ये है ईस्ट। तो इसी के 1955 में जब नाटो में वेस्ट जर्मनी को इंडक्ट कर दिया जाता है, तो इसी के रिएक्शन में 1956 में क्या होता है, इसी के रिएक्शन में 1956 में एक ऑर्गेनाइजेशन आता है वर्ल्ड मैप पर, जिसे हम बोलते हैं वॉर्शो पैक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे अच्छे से तो वॉर्शो पैक्ट यहाँ पर बन जाता है। ये रिएक्शन में बनता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो लेड ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, वो जर्मनी को भी अपने मिलिट्री ब्लॉक में शामिल कर लेता है। सो यहाँ पर एक सोवियत यूनियन अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाता है जिसका नाम होता है वॉर्सो पैक्ट। लेकिन ये सब चीज डेवलपमेंट होता है, लेकिन अगर आप देखें तो ये ज्यादा एक्सपेंशन उतनी तेजी से नहीं होता है, क्योंकि 1955 में सिर्फ वेस्ट जर्मनी को ही ये लोग इंक्लूड कर पाते हैं। 1982 में देखें तो ये लोग स्पेन को इंक्लूड कर पाते हैं। 1990 में वही जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है, जिसमें होता है कि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी एक बन जाता है, तो 1990 में वही सब हो जाता है, वही मिलकर के जर्मनी जो नाटो का पार्ट बन जाता है। बट यहाँ पर सबसे, अब बोल सकते सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो होता है, जो कि रशियन लीडर्स का मानना है कि वेस्ट के लीडर्स ने उनके साथ धोखा किया, बिट्रेल किया, वो होता है कि 1999 में यहाँ पर अगर आप तीन देश को अच्छे से अगर आप ध्यान देंगे, जस्ट लाइक पोलैंड को, फिर से चेक रिपब्लिक को एंड यहाँ पर बुल्गारिया को, तो उसको मेंबर बनाया जाता है, जो कि फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट का मेंबर होता है। तो यहाँ पर रशियन लीडर का कहना था कि आप ये बिट्रेल किए हैं, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव एंड रोनाल्ड रीगन ने डायलॉग किया था, वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल एग्रीमेंट भी किया था कि आप वॉर्सो पैक्ट के एक भी मेंबर को आप नाटो का पार्ट नहीं बनाइएगा एंड आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। लेकिन वेस्टर्न लीडर्स ने बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलैंड को मेंबर बनाया जाता है, फिर से यहाँ पर चेक रिपब्लिक को बनाया जाता है, फिर से यहाँ पर बल्गारिया को बनाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद रशियन लीडर्स ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते। लेकिन 2004 में रशिया के एकदम डोर पर नाटो आ जाता है, तो यहाँ पर का कहना था वो बहुत ही ह्यूजली रेजिस्ट करते हैं कि आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न लीडर्स जो होते हैं वो रशियन बॉर्डरिंग जो तीन स्टेट होता है, इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, इन तीनों को नाटो में शामिल कर दिया जाता है। एंड फिर से अगर आप नीचे के ये दो स्टेट को देखें, इनको भी शामिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रशियन जो लीडर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, बट यहाँ पर कोई मिलिट्री वो एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, उतनी उतनी होती नहीं है कि वो मिलिट्री एक इन्वॉल्वमेंट में फंस सके, वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में वो फंस सके। लेकिन यहाँ पर जो नाटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है वो
कॉन्टिन्यूअसली जारी रहता है। और 2009 में तो हद हो जाता है जब फॉर्मर यूगोस्लाविया का एक कंट्री होता है स्लोवेनिया, उसको भी नेटो में शामिल कर लिया जाता है। एंड अल्बानिया, जो कि ये भी वार्सो पैक्ट का मेंबर होता है, इसे भी शामिल कर लिया जाता है। एंड 2017 में अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पर नॉर्थ मेसिडोनिया को, छोटा सा कंट्री है नॉर्थ मेसिडोनिया जो कि सर्बिया के नीचे है, उसे भी शामिल कर लिया जाता है। एंड 2020 में भी एक्सपेंशन किया जाता है। एंड अगर पिछले साल के बारे में अगर हम बात करें 2023, तो 2003 में तो यहाँ पर फिनलैंड शामिल हो जाता है, और 2024 में स्वीडन भी रेडी है। तो यहाँ पर रशियन लीडर्स का कहना है कि आप बिल्कुल भी ईस्टवर्ड डायरेक्शन नहीं करना था। उनका पहला ये था वेस्टर्न लीडर्स के साथ कि आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। मींस रशियन लीडर्स बोलते हैं कि ये एक बाउंड्री लाइन है, आप इसके ईस्टवर्ड में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बट वेस्टर्न लीडर्स ने बिल्कुल भी, अकॉर्डिंग टू रशियन लीडर्स, वेस्टर्न लीडर्स ने उनको बिट्रेल किया, उनको धोखा दिया। और यहाँ पर अल्टीमेटली हद तब हो जाती है जब वो इस यूक्रेन को भी नाटो का मेंबर बनाते हैं, जिसे रशियन लीडर या रशियन पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि ये जो जहां से रशिया की स्टार्ट हुई है, कीवियन रूस, उसका ये पार्ट है। ये इंपीरियल रशिया का एक मतलब एक बोल सकते हैं कि एक मतलब कि बहुत ज्यादा यूनाइटेड रिलेशन है रशिया का और यूक्रेन का। और अगर आप यूक्रेन को नाटो का पार्ट बना देते हैं तो एक कल्चरल रशियन हेरिटेज है, आप उसे बर्बाद कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर 24 फरवरी को जो रशियन प्रेसिडेंट होते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, वो यहाँ पर यूक्रेन पर अटैक करते हैं। और अटैक करते हैं और पूरी रशिया की, यूक्रेन का जो 4 प्रोविंस जो होता है उसे वो कैप्चर कर लेते हैं। फर्स्ट ये होता है दोनियत्स्क होता है, लुहांस्क होता है, जापोरोजिया होता है, एंड ये खेरसॉन होता है। और ये जो आप नीचे वाली टेरिटरी को जिसे आप देख रहे हैं, वो नीचे वाली टेरिटरी जो होता है वो ये है क्राइमिया। तो क्राइमिया जो होता है इसे तो रशिया 2014 में ही ऑक्युपाई कर लिया था। रशियन अगर आप वर्जन पर जाएंगे तो रशिया का कहना है कि वो यहाँ पर लोगों से रेफरेंडम करवाया था, लोगों की सहमति लिया था, तब इसे रशियन रिपब्लिक का हिस्सा बनाया था, रशियन फेडरेशन का हिस्सा बनाया था। बट यूक्रेन का मानना है कि रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके जो लॉयलिस्ट है उनका, उन्होंने क्राइमिया में अपना एक प्रभाव दिखाया और विथ और फोर्स से इन्होंने क्राइमिया पर अधिकार कर लिया। बट यहाँ पर जो आप अगर आप रशिया को बड़े स्तर पर देखें, रशिया को मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि रशिया जस्ट लाइक ये मैप है, रशियन मैप है। तो अगर आप रशियन मैप को ध्यान से देखें तो रशिया ये सिर्फ यूरोपियन रशिया है, ये सिर्फ यूरोपियन रशिया है। एंड ये यूक्रेन, और ये एक बस छोटा सा इलाका है यूक्रेन। तो आपके भी मन में आता होगा या किसी भी स्टूडेंट के मन में आता है कि ये जो क्राइमिया है इसके पीछे रशिया क्यों पड़ा था। सो सबसे पहले मैंने अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि हम यूरोप की ज्योग्राफी पर देखेंगे। सो यूरोप की ज्योग्राफी पर अगर हम देखें, खास करके रशिया की ज्योग्राफी, तो रशिया अपने मतलब कि ज्योग्राफी है वो बिल्कुल रशिया को सूट नहीं करता है। क्योंकि अगर हम रशिया के बारे में अगर डिटेल्ड अगर उसके ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर रशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, जो कि हमेशा साल के 12 महीना ये बर्फ इसमें रहता है, ये बर्फ से जम जाता है। एंड यहाँ पर बेरिंग सी भी देखिए, ये भी बर्फ से जमा रहता है। एंड नीचे यहाँ पर व्लादिवोस्टॉक वाला एरिया देखे तो ये, लेकिन ये सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को से बहुत दूर है। तो यहाँ पर कोई रशिया का ट्रेडिंग सेंटर बिल्कुल भी नहीं है। एंड कैस्पियन सी देखे तो ये एक लेक है जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर रशिया को बस एक ही एक जगह मिलता है अपने ट्रेडिंग सेंटर से अपना सामान दुनिया को बेचने वाला, और वो बचता है केवल एक, थ्रू ब्लैक सी। दैट्स वाई रशियन जो यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनका कहना था
कि ये जो क्राइमिया जो है वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो सोची, यहाँ पर देखें तो रशिया के सदर्न साइड में एक सोची नाम का शहर है, तो सोची उनका ट्रेडिंग सेंटर है। तो रशिया में बस दो ही तरीके हैं जब वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्शन कर पाता है। पहला है यहाँ पर नॉर्डिक सी से, यहाँ पर नॉर्डिक बाल्टिक सी से, यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग से बाहर निकलता है एंड बाहर जाता है, और थ्रू सुएज कनाल इंडिया और चाइना की ओर जाता है, और नीचे हम देखें तो थ्रू ब्लैक सी और यहाँ पर डार्डेनल्स और बॉस्फोरस स्ट्रेट को पार करते हुए यहाँ पर सुएज कनाल में एंट्री लेता है। दैट्स अगर रशियन वर्जन ये है कि अगर यहाँ पर क्राइमिया को अगर नेटो अपना बेस बना लेता है, क्राइमिया को नेटो अपना बेस बना लेता है और रशिया को रोक देता है, तो रशिया बिल्कुल लॉक हो जाएगा, अपने ज्योग्राफी में लॉक हो जाएगा, और वो पूरी दुनिया से कनेक्शन नहीं कर पाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर इसके हिस्टोरिकल अगर फैक्टर में अगर हम जाए तो हमें पता चलेगा कि जो ये इंपीरियल रशिया जो था, जो कि ये पूरा इंपीरियल रशिया जो था, उसका ब्लैक सी जो फ्लीट जो था, ब्लैक सी फ्लीट, उसका हेडक्वार्टर क्राइमिया का एक शहर है सेवास्तोपोल, वहां पर है। और सोवियत यूनियन के टाइम भी सेवास्तोपोल को ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर बनाया गया था। रशिया जो रशियन फेडरेशन जो CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो 1991 में साइन किया था यूक्रेन के साथ, एक ट्रीटी साइन करता है, उसके तहत वो सेवास्तोपोल जो छोटा सा शहर है उसको वो रशिया बोलता है कि यहाँ पर मेरी ब्लैक सी फ्लीट है, उसका हेडक्वार्टर है, तो ये मैं अपने पास रखूंगा। तो रशियन जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको डर होता है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो ये सेवास्तोपोल जो उनका ब्लैक सी फ्लीट है वो भी चला जाएगा। सो फर्स्ट 2014 में वो इसे क्राइमिया को एनेक्स करते हैं एंड सेवास्तोपोल को अपना हिस्सा बना लेते हैं। एंड वो वेस्टर्न लीडर्स को यहाँ पर वार्निंग देते हैं, रशियन लीडर्स वेस्टर्न लीडर्स को वार्निंग देते हैं कि आप यूक्रेन को कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनाइएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर IR के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यहाँ पर हर एक जो ग्रेट पावर्स होती है उनका एक रीजनल इन्फ्लुएंस होता है, रीजनल स्टेबिलिटी होता है। रशिया का कहना था कि हमारी जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो ईस्ट यूरोप तक है, वो ईस्ट यूरोप तक है, मीन्स रशिया हो गया, फिनलैंड हो गया, फिर से आप ये तीनों को देख ले, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, रोमानिया, बल्गारिया को देख ले। ये रशिया का कहना था कि हमारी इंपीरियल रशिया यहाँ तक फैली थी, जारिस्ट रशिया यहाँ तक फैली थी, जहां पर हमारा इन्फ्लुएंस था। सो आज की डेट में भी हम अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं, और आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना करके आप उसे रीजनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी 2000 अगर हम और भी ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो यूक्रेन की जो पॉलिटिक्स होती है वो, उसमें उसमें दो तरीके के पॉलिटिशियन, मतलब कि 2014 से पहले होते थे, एक प्रो रशियन होते थे और एक एंटी रशियन होते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी जो 2014 के पहले, 2014 के पहले जो ये होते हैं, 2014 के पहले जो यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट होते थे वो मोस्टली प्रो रशिया स्टैंस लेते थे। लेकिन 2014 के बाद जब वहां के प्रेसिडेंट होते हैं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो होते हैं विक्टर यानुकोविच, उनको टॉपल कर दिया जाता है। बहुत सारे रशियन पॉलिसी मेकर्स का कहना है कि वो CIA या वेस्टर्न लीडर्स के द्वारा नियोजित था, उन्होंने प्लान किया था, और वहां के प्रेसिडेंट को वो लोग टॉपल कर देते हैं और प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट को वो वहां पर बैठा देते हैं। और वहां पर डी रसिफिकेशन एक पॉलिसी आता है रशिया में, सॉरी यूक्रेन में। डी रसिफिकेशन और डी कम्युनाइजेशन मीन्स जो रशियन लैंग्वेज होता है, रशियन कल्चर होता है, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च होता है, ये सब को यूक्रेन में बैन कर दिया जाता है। एंड डी कम्युनाइजेशन मीन्स जितना लेनिन का, स्टालिन का, या जो भी सोवियत टाइम मॉन्यूमेंट बने थे उन सबको तोड़ना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रशियन लोग होते हैं इसे अपना वो प्राइड का इश्यू बनाते हैं, और इसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उनका कहना होता है कि जो रशियन जो मूल के जो लोग हैं वो यूक्रेन के जो ईस्टर्न साइड में रहते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ईस्टर्न साइड में रहती है रशियन जो मूल लोग रहते हैं,
उनके बारे में अब समझिए कि अगर ये डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, ज़ापोरिज़िया में, खेरसॉन में, क्राइमिया में रहने वाले जो अधिकतर लोग हैं, मीन्स 80% लोग हैं जो कि रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, रशियन कल्चर को फॉलो करते हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं, और यहाँ पर जो कियोव में बैठी हुई उनको सरकार है, बोलते हैं कि आप ये लैंग्वेज को नहीं बोल सकते, आप ये कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते, तो उनमें एक रिएक्शन होता है और 2014 में ही यूक्रेन में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। और यही सिविल वॉर 24 फरवरी 2024 को और भी आगे इरप्ट हो जाता है, और ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस के रूप में सामने आता है। हमारे वर्ल्ड मीडिया 24 फरवरी को दिखाती है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, बट यहाँ पर और व्लादिमीर पुतिन को वेस्टर्न लीडर्स क्रिटिसाइज करते हैं, सैंक्शंस भी कर देते हैं, और पूरे रशिया पर सैंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पर रशिया जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 18 और 19% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी है, उसे वो कंट्रोल कर लेता है। हालांकि ये डाटा सितंबर 2023 का है। सो यहाँ पर ये तो हो गया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। अगर उसके बारे में, अगर हम भविष्य के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो वेस्टर्न लीडर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, उन सबको अगर रशिया जो है उसका कहना है कि आप रीजनल जो स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन अब आपको रोकना होगा। हालांकि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन अब कुछ बचा नहीं है, मीन्स यूक्रेन ही नहीं है और बेलारूस है। तो बेलारूस रशिया के एलाई है, एंड यूक्रेन पर ही रशिया का जोर है कि आप यूक्रेन को किसी भी हालत में नाटो का मेंबर नहीं बना सकते हैं। तो रशिया का कहना है कि आप नाटो को एक, सॉरी, यूक्रेन को आप एक न्यूट्रल कंट्री बनाइए, एंड तभी हम वहां पर अपना वॉर जो है वो खत्म करेंगे। अदरवाइज वहां की जो लीडरशिप है, जो कि व्लादिमीर जेलेंस्की है, उनको आप वहां से हटाइए और फिर से एक इलेक्शन हम कराते हैं, और वहां पर जो जनता जिसको भी चुनेगी उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले यूक्रेन, व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को आप एक न्यूट्रल कंट्री घोषित करें, क्योंकि वेस्टर्न लीडर्स को भी ये मानना होगा। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो मॉनरो डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है। हालांकि मॉनरो डॉक्ट्रिन जो होता है वो वहां पर 1829 टू 30 के बीच में आता है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उसका कहना है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, मीन्स जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वहां से यूरोपियन जो भी पावर्स जैसे कि स्पेन है, पोर्टुगल है, फ्रेंच है, ब्रिटेन है, वो सब अपनी कॉलोनीज को आजाद कर दे और वापस यूरोप में चले जाए। तो वैसे ही रशिया को भी कहना है कि हमारा जो ये ईस्टर्न यूरोप है वहां पर एक अपनी हेजेमनी है, हमारी स्टेबिलिटी चलती है, रीजनल स्टेबिलिटी है हमारी। आप यहाँ पर बिल्कुल भी ब्रीच ना करे। अगर आप ब्रीच करेंगे तो यहाँ पर ग्रेट पावर का टसल होगा, एंड वॉर को आप रोक नहीं सकते हैं, इनएविटेबल है। जस्ट लाइक जॉन जेमर साइमर भी अपने उनके एक फाइनेस्ट बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, उसमें वो यही लॉजिक देते हैं, यही आर्गुमेंट उनका कहना है कि कि यहाँ पर रशिया को एक्चुअली आप ये बोल सकते हैं कि मजबूर भी किया गया 24 फरवरी 2022 को, जिसमें वो लास्ट में वो मतलब कि एक उसकी उसने जो एक लाइन जो खींची थी, एक उसने जो बोला था यूरोपियन लीडर्स को कि डोंट क्रॉस योर Rajkamal, लिमिट्स। sorry to तो ये interrupt. Your PPT is not visible totally. रियली Yeah, half of your PPT is shown and half of it is not. हाउ Please tilt your mobile or portrait or landscape. इज इट विजिबल? It is not visible till yet. वेट अ मिनट, इज इट? हम्म, Now it's visible. ओके, अभी अब हो रहा है? No. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैंने वो रशिया यूक्रेन के बारे में बताया। यहाँ पर अब मेरा लास्ट मतलब फेज चल रहा है। सो क्या आप लोग को वो पीपीटी नहीं दिख रहा था? हेलो?
नहीं, वो आधी कट रही थी इसलिए नहीं आ रही थी। ओके ओके, अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ओके ओके ओके। सो सो 24 फरवरी 2022 को जो रशियन लीडर होते हैं वो एक वेस्टर्न लीडर्स को जो बोलते हैं, अल्टीमेटम देते हैं कि आप प्रॉमिस करिए, जस्ट लाइक अगर आप न्यूज वेबसाइट पर जाएं तो रशियन जो प्रेसिडेंट होते हैं व्लादिमीर पुतिन, वो बहुत सारी मीटिंग करते हैं। जो जर्मन जो चांसलर होते हैं वोलाफ सॉल्ज, उनसे पहले आप देखें तो जो जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्रेसिडेंट थी उनके साथ करते हैं, जो जर्मनी की थी। एंड उसके इमैनुअल मैक्रो फ्रेंच प्रेसिडेंट होते हैं, उनके साथ करते हैं कि आप प्रॉमिस करो कि आप एक रिटर्न, आप एक प्रॉमिस करो, आप ट्रीटी करो कि आप कभी भी यूक्रेन को नाटो का पार्ट नहीं बनाएगा। बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। एंड 24 फरवरी 2022 को रशिया जो होता है वो यूक्रेन पर अटैक कर देता है। एंड उसका जो चार प्रोविंस होता है, जो कि पहला जो होता है वो दोनेत्स्क होता है, लुहांस्क होता है, जापोरिजिया होता है, एंड लास्ट में खेरसोन जो होता है, जो कि देखिए यहाँ पर डार्क किया गया है, उसे वो कैप्चर कर लेता है। एंड जो ये क्राइमिया वाला जो एरिया जो होता है वो 2014 में ही रशिया एनेक्स कर लेता है। सो ये तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। बट अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा सेकंड पॉइंट है इस लेक्चर का, उसमें देखें तो यहाँ पर होता है कि रशिया पर पूरी तरीका से वेस्ट जो होता है, just like United States, Canada, Britain, Germany, France, Spain, Portugal, Italy, जापान, ये सारी कंट्रीज सैंक्शंस लगा देती हैं। एंड सैंक्शंस लगा देती हैं तो रशिया जो होता है, रशिया की इकोनॉमी जो होता है वो डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर रशिया की अगर हम मेन कॉमोडिटी देखें, रशिया का जो बिजनेस देखें कि रशिया सेल क्या करता है, एक्सपोर्ट किस चीज का करता है, तो वो मेन दो चीज होता है, ऑयल एंड गैस। और इससे ज्यादा अगर हम बात करें तो रशिया मेनली मिनरल्स को का सेल कर, जस्ट लाइक कोल, जस्ट लाइक एलपीजी, उसके आगे देखें तो डायमंड्स। बस रशिया कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का सेल एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। तो उसके जो बायर्स थे, उसके जो 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 भी एक्सपोर्ट वो जो करता था, तो जो उसके जो कॉमोडिटी था, उसका जो प्रोडक्ट था, उसके जो बायर्स थे वो पहले सबसे ज्यादा जर्मनी था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, नीदरलैंड था, जो उसके ऑयल को, गैस को खरीदता था। बट इन्होंने तो सैंक्शंस लगा दिए, वेस्टर्न जो लीडर्स थे, वेस्टर्न स्टेट्स थे, वो सैंक्शंस रशिया पर लगा देता है। तो रशिया जो होता है वो बहुत, जस्ट लाइक आपने न्यूज एजेंसीज में भी देखा होगा कि रशिया जो होता है वो ये करता है, अपनी जो ऑयल होता है, गैस होता है, फर्टिलाइजर होता है, डायमंड्स होता है, वो रशिया सॉरी इंडिया को एंड चाइना की तरफ मूव कर देता है। एंड यहाँ पर पूरी तरीका से रशियन जो इकोनॉमी होता है, उसको बोल सकते हैं कि दो कंट्रीज, जो दो एशियन जायंट्स, रशिया, इंडिया एंड चाइना जो होते हैं, वो उनकी जितनी भी ऑयल एंड गैस होता है, उस जो भी खपत जो होता है, जो भी इंडिया और चाइना का, वो पूरी तरीका से ये इन लोग रशिया से ही मंगाते हैं। एंड अगर हम बात करें तो रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, बट रशिया इज अ मेंबर ऑफ ओपेक प्लस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है। सो यहाँ पर जो जीसीसी मेंबर कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, ये जीसीसी मेंबर्स। एंड जो अफ्रीका के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जस्ट लाइक नाइजीरिया हो गया, गैबोन हो गया, फिर से ऊपर चाड हो गया, लीबिया हो गया, अंगोला हो गया, इन सब कंट्रीज ने मिल करके, और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो वेनेजुएला हुआ, इन सब ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम होता है ओपेक। तो रशिया जो होता है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। बट स्टिल रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। बट रशिया जो होता है वो ओपेक को एक्सटेंड करने का प्रस्ताव देता है सऊदी अरेबिया को। एंड सऊदी अरेबिया जो होता है वो ओपेक प्लस बनाता है। हालांकि बहुत सारे वर्ल्ड मीडिया, मीडिया का मानना है कि ओपेक प्लस को रशिया कंट्रोल करता है। और यहाँ पर ये लोग जो होते हैं, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशियन इकोनॉमी को
उतना ज़्यादा पनिश नहीं किया जा पाया 2022 में जब वो अटैक किया था यूक्रेन पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी ओपेक प्लस कंट्रीज़ है, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उन्होंने ऑयल का जो प्रोडक्शन लेवल था उसे उन्होंने बहुत कम कर दिया, जिससे कि प्राइस जो थी वो सबसे ज्यादा हो गई ग्लोबल मार्केट में। दैट्स व्हाई जो ग्लोबल ऑयल प्राइस थी वो एक स्टेबल प्राइस पर चली गई। दैट्स व्हाई उसी पैसा से अगर हम बोल सकते हैं तो रशियन इकोनॉमी सरवाइव कर पाई, और जो भी रशिया का जो ऑयल था, गैस था, ये सबको को इंडिया एंड चाइना में भेज दिया गया। इंडिया एंड चाइना ने उसे इंपोर्ट कर लिया। जस्ट लाइक हम ये इस डाटा से देख सकते हैं, ये स्पुतनिक का डाटा है, मीन्स रशियन जो एजेंसी, मीडिया एजेंसी है, उसका डाटा है कि 2023 में जो रशिया जो होता है वो इंडिया को 2023 जून में वो 2 मिलियन बैरल जो होता है उसको भी ब्रीच कर देता है। एंड 2.2 मिलियन डॉलर्स इज ह्यूज, बिकॉज इंडिया टोटल ऑयल जो इंडिया टोटल इंपोर्ट करता है वो अप्रॉक्स 5 मिलियन बैरल के करीब है, मीन्स 50 लाख बैरल। और उसमें से अगर 22 लाख बैरल रशिया से खरीद रहा है, मीन्स इट्स ह्यूज, मीन्स 42 टू 45% आप खरीद रहे हैं रशिया से। तो यहाँ पर जो इसी से आप देख सकते हैं कि रशिया से कितना ज्यादा इंडिया ऑयल खरीदता है। फिर से चाइना का डाटा अगर आप देखें तो चाइना भी बहुत ही ज्यादा करते हैं। दैट्स वे रशियन इकोनॉमी जो होती है सैंक्शंस के बावजूद, अगर मैं एक सीएनएन का डाटा पढ़ रहा था जिसमें बोला गया था कि रशिया पर 10,000 सैंक्शंस लगाया गया, तो 10,000 सैंक्शंस के बावजूद वो सरवाइव कर रहे हैं और अपनी वॉर को, अपनी कन्फ्लिक्ट को वो जारी रखे हुए, कंटिन्यू किए हुए। तो वो इसलिए क्योंकि उसके न्यू बायर्स उसने न्यू बायर खोज लिया है। सो दैट्स ऑल। होप दैट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। Rajkamal, I request you to please enhance more on the basis of economical structure that faced by the Europe after this conflict, not by Okay. Russia itself, but how the European countries face the economical challenges and the underdeveloping countries like African countries and somehow some Latin American countries. They are facing these crises after Ukraine and Russia war, because mostly Ukraine is an oil producer of sunflower oil, and Okay. after this war there are large number of export in declined after this war, and how Yeah. these in the food security matter they affect the economical structure of worldwide. You can enhance some Okay. more on this, please. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट, हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो कि वेस्टर्न जो कंट्री थी, वेस्ट, खास करके वेस्ट यूरोप, जो कि सबसे पहले जो रशियन ऑयल की बायर थी, रशियन ऑयल गैस की। जैसे कि अगर हम जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, वो उसको पूरी तरह से फ्यूल कर रहा था, वो रशियन गैस कर रहा था, बिकॉज रशियन गैस वाज सो चीप दैट टाइम। दैट्स वाई वहां की जो उस टाइम की जो चांसलर थी, गिराल ब्रेडर, एंड वहां की जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी की जो चांसलर थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा फोकस किया था रशिया से गैस लाने के लिए। दैट्स वाई रशिया ने एंड जर्मनी ने एक दूसरे को डायरेक्ट गैस सप्लाई करने के लिए नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन बनाया, फिर नॉर्ड स्ट्रीम टू पाइपलाइन बनाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि वेस्ट जो होता है वो सैंक्शंस लगा देता है रशिया पर, फिर जो वेस्ट जो होता है वो कैसे सफर करता है। तो अगर हम देखें डेली रिपोर्ट को, अगर हम फॉलो करें, जस्ट लाइक बीबीसी, जस्ट लाइक सीएनएन, जस्ट लाइक अल जजीरा, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर तो हमें पता चलेगा कि जो वेस्ट जो होता है वो पूरी तरीका से वहां पर इन्फ्लेशन प्राइस देखे, जस्ट लाइक फ्रांस में डबल डिजिट में है, जर्मनी में, जर्मन इकोनॉमी पर अगर हम ध्यान दें तो जर्मन इकोनॉमी जो है वो इस साल डिटोरेट किया है। मीन्स अगर हम वहां की जीडीपी को बात करें तो 2002 के से इस साल उनकी जीडीपी 0.4% डिटोरेट किया, माइनस में है। ऐसे ही अगर हम जापान की इकोनॉमी को बात करें, फ्रांस की इकोनॉमी को बात करें, यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी के बात करें, बट यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन आता है कि बट रशिया से वो ऑयल नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आखिर में उनकी इकोनॉमी चल कैसे रही है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न लीडर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली शिफ्ट कर जाते हैं अल्जीरिया की ओर, लीबिया की ओर, गैबोन की ओर,
सियरा लियोन की और इथियोपिया की और जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो होते हैं वहां से वो लोग एक्सट्रैक्ट करने स्टार्ट करते हैं एंड डायरेक्ट वो यूरोप की ओर डाइवर्ट कर देते हैं। आप बहुत सारी चीज देखेंगे कि अल्जीरिया जो होता है वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बहुत ह्यूज बहुत आगे तक लेकर गया है एंड फिर से आप लीबिया को देखेंगे, इथियोपिया को देखेंगे, मैंने अल्जीरिया का नाम लिया, फिर से अंगोला को देखेंगे जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है एंड इन सब के प्रोडक्शन लेवल बहुत ही ह्यूज बड़ा, जो कि अगर हम इटली के बारे में बात करें तो इटली को एक तरीका से बेस बनाया गया है कि जस्ट लाइक नॉर्ड नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो था जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के से स्टार्ट होता था एंड जर्मनी के जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो वहाँ का एक स्टेट है वहाँ उसको कनेक्ट करता था। तो यहाँ पर अल्जीरिया का जो गैस होता है वो जैसे ही यूरोप में एंट्री लेता है तो उसका एक ट्रांजिट पॉइंट जो होता है वो इटली को बनाया गया है। सो इसीलिए वहां पर यूरोप यूरोप की यूरोपियन जो इकोनॉमी है उसको फ्यूल कर रहा है जो अफ्रीकन जो गैस है, अफ्रीकन जो ऑयल है। एंड सबसे सरप्राइजिंगली आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि आज के करंट अगर आप डाटा देखें कैपलर जो कि ऑयल शिपमेंट को ट्रैक करता है वो आपको बताएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स करेंटली सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। वो रशिया को भी पीछे छोड़ चुका है एंड सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ चुका है एंड यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरीका से एलएनजी मींस सेल गैस को भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एंड ऑयल को भी प्रोड्यूस कर रहा है एंड उसकी जो अगर आप बहुत ज्यादा अगर डीपली जाना चाहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी रशिया यूनाइटेड स्टेट्स के तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक जायंट है एक्सॉन मोबिल उसका एक ह्यूज प्रॉफिट हुआ है पिछले साल। अगर आप एक्सॉन मोबिल को अच्छे से देखें तो क्योंकि उसने सेल गैस को एक रिकॉर्ड लेवल पर उसने प्रोडक्शन किया था एंड वो एक्सपोर्ट पूरी तरीके से यूरोप में किया गया था, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, पोर्टुगल में और नीदरलैंड्स में। एंड जो ऊपर की आप अगर 3 स्कैवेंडियन कंट्रीज को देखें जस्ट लाइक नॉर्वे को देखे, फिनलैंड को देखे, डेनमार्क को देखे एंड स्वीडन को देखो तो खास करके इनकी जो इकोनॉमी है वो ऑयल एंड गैस पर डिपेंडेंट है नहीं। एंड नॉर्वे तो खुद ब खुद एक ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है एंड वो एक्सपोर्ट भी करता है एंड वो हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर वो शिफ्ट भी कर रहा है। अगर हम बीबीसी एंड डैचिस विले की रिपोर्ट पर अगर ध्यान दे तो और यहाँ पर प्रांजल ने सनफ्लावर ऑयल के बारे में बात किया। सो सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो पूरी सनफ्लावर ऑयल जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट सनफ्लावर ऑयल का कोई है तो रशिया है एंड दूसरे नंबर पर यूक्रेन जो है। तो सनफ्लावर ऑयल जो रशिया का था उसका भी सबसे बड़ा कोई पहले इंपोर्टर जो था वो इंडिया ही था एंड यूक्रेन से भी जो था वो इंडिया ही था। सो करेंटली इंडिया डाइवर्ट कर दिया एंड सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूक्रेन से ना लेकर के रशिया से इंडिया प्रिफर कर रहा है। सो दैट्स इट। So, what's your opinion about today news about that Sweden is also become a member of NATO, and what were the implications for the futures itself in terms of Ukraine-Russia wars is going on this year too? Because in the upcoming month, February 22, it's become a 2 year flash war from 2022 February 2022, and now it's 2024. It's up to 2 years, and the members that currently deciding or neighboring the Russia is also becoming a member of NATO and other collective security agencies. What's your point about it? सो फर्स्ट जो आपने बात किया स्वीडन के बारे में एंड पिछले साल हमने देखा कि फिनलैंड भी नाटो का मेंबर हो गया। सो अगर हम इसे अगर हिस्ट्री में किसी अगर पॉइंट से कंपेयर करें तो हम 1913 या 1914 के टाइम से कंपेयर कर सकते हैं जहां पर एक छोटी सी स्पार्क ने वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। तो अगर फिनलैंड को स्वीडन को हम देखें जो कि पीस लविंग कंट्री है जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूट्रलिटी का पोजीशन रखते हैं और कोल्ड वॉर के टाइम ये लोग स्वीडन जो होता है फिनलैंड जो होता है वो नेटो का मेंबर बन रहा है। मींस जब अगर आपके कंट्री पर अटैक होने वाला अगर होता तो कोल्ड वॉर के टाइम इजीली हो जाता है क्योंकि अगर आप देखें 1922 में रशिया सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर अटैक किया था
अटैक किया था, लेकिन वहां के 1922 में जो फिनलैंड के लोग जो है, फिनिश जो लोग हैं, वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, ब्रेवली लड़ते हैं, एंड वो सोवियत यूनियन के साथ उनका एक लास्ट में ट्रीटी होता है। दैट्स व्हाई सोवियत यूनियन बोलता है कि आप लोग न्यूट्रलिटी अगर निभाइएगा तो हम कभी भी अटैक नहीं करेंगे। एंड पूरी तरीका से उसके बाद 1922 के बाद अगर आप देखें तो सोवियत यूनियन, रशिया ने कभी भी अटैक नहीं किया फिनलैंड के ऊपर। और आज मीन्स अगर आप 21st सेंचुरी को देखें तो रशिया एक न्यूट्रल कंट्री पर क्यों ही अटैक करेगी, या कोई भी कंट्री जो अपने न्यूट्रलिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, वो बोल रहा है कि मैं किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, किसी भी अलायंस के प्रति मेरी लॉयल्टी नहीं है, उस पर कोई अटैक नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न एंड फिनिश लीडर्स एंड स्वीडिश लीडर्स ने नाटो ज्वाइन करने का जो 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 फैसला लिया है, वो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उन्होंने वॉर को इनवाइट किया है, कॉन्फ्लिक्ट को इनवाइट किया है। एंड जो फर्स्ट अगर हम करंटली देखें तो दो जो क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर एंड इसराइल गाजा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमास सॉरी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो अगर फिर से अगर यूरोप में एक दूसरा जो 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 अगर मोर्चे स्टार्ट होता है, नई जो जगह पर स्टार्ट होता है, तो ये अनफॉर्चुनेट होगा यूरोप के लिए कि जो भी न्यूट्रल जो कंट्री थे, जस्ट लाइक अगर हम बेस्ट न्यूट्रलिटी का एग्जांपल ले तो स्विट्जरलैंड का लेंगे, जो कि पिछली जो 2 वर्ल्ड वार हुई, कोल्ड वार हुआ, उसमें बिल्कुल भी वो पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि अगर हम 1914 टू 18 के बारे में बात करें, 1939 टू 45 जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, उस टाइम की भी बात करें तो स्वीडिश जो स्विट्जरलैंड के जो लीडर्स थे, उनका मानना था कि जर्मनी हम पर अटैक कर देगा एंड हम लोग को एक डिफेंसिव शील्ड बनाना चाहिए, तो उन्होंने बनाया। बट जर्मनी ने कभी अटैक नहीं किया स्विट्जरलैंड पर। सो अगर स्विट्जरलैंड न्यूट्रलिटी अगर अच्छे से निभा रहा है एंड उस पर जर्मनी ने अटैक नहीं किया, एंड कोल्ड वॉर के टाइम फिनलैंड पर, स्वीडन पर सोवियत यूनियन ने अटैक नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता है, या फिर से किसी भी आईआर के जो प्रोपोनेंट्स हैं, आईआर के जो भी थिंकर्स हैं, जस्ट लाइक अब मैं आईआर के लीजेंड जॉन जेमर की बात करूं, या जो भी यूरोपियन जो स्कॉलर्स हैं, अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, उनका बिल्कुल नहीं मानना है कि रशिया जो है वो फिनलैंड पर या स्वीडन पर अटैक करने वाला था। बट ये स्वीडिश या फिर से फिनिश लीडर्स की फुलिशनेस बोल सकते हैं, या वेस्टर्न लीडरशिप के बहकावे को बोल सकते हैं, कि वो अपनी न्यूट्रलिटी की पोजीशन को छोड़ करके एक मिलिट्री ब्लॉक के क्लब में चले जाना, एंड कॉन्फ्लिक्ट को वो उन्होंने इनवाइट किया है। सो मे बी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो दैट्स ऑल। So it's a great honor that you joined us, and really it's a good session. I think some of the viewers in our audience, they have some questions. So one by one, you can ask the question from Rajkamal, and after this, I conclude the session and asking some of the more questions from Rajkamal as well. Thanks. Yeah, Nil. You can unmute your mic and ask a question. Yeah. Uh, First of all, I'd like to thank you for this talk and your valuable insights on the war. My question to you is that we have all seen that the United States government, which is a Democrat government right now, how they have Yeah. reacted to the war. They have Mm-hmm. condemned it very widely. Mm-hmm. They have also Mm-hmm. aided Ukraine in whichever way possible in terms of arms and ammunitions, and also of gardening support for them through different countries who align with United States. How do you think this situation might or might not change if the Republicans come to power in United States? So first of all, you are talking about the political parties of United States, that is Republican and Democratic Party. So 2014 में जैसे ही क्रीमियम जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, रशिया ने जो क्राइमिया को एनेक्स किया, उस टाइम अगर हम देखें तो रशिया का सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट होता है वो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट होता है, बराक ओबामा। एंड उसका जो उनका जो रिएक्शंस जो होता है, वो कोई ऐसा नहीं होता है कि वॉर करने के लिए जाना है, बट
हम 2022 के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, तो वहाँ उस टाइम भी जो यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है वो डेमोक्रेट होता है, जो बिडेन। तो यहाँ पर अगर हम यूएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूएस को भी अपने जो मिलिट्री ब्लॉक्स थे, उनके जो लीडर्स थे, उनको ये बताना था कि हमारा जो जो मिलिट्री ब्लॉक है वो जो कोई भी कंट्री जो अगर हमारे ब्लॉक में एंट्री लेना चाहता है, या अगर वो हमारे साथ है या हमारा अलाई है, तो हम उसके साथ एनी हाउ रहेंगे। सो जहां पर बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि अगर वहां पर अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जस्ट एक डोनाल्ड ट्रम्प अगर बनते हैं 2024 में, तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी मीडिया में ऐसी बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो चेंज हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट अगर 1955 की तरफ जाएंगी, अगर आपने देखेंगे कि 1955 में जो वियतनाम वॉर स्टार्ट हुआ था, तो वियतनाम वॉर को स्टार्ट किया था एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डीडी आइजनहावर ने, ड्वाइट डी आइजनहावर ने। एंड उसको बहुत सारे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने कैरी फॉरवर्ड किया, एंड उसको 1973 में उसको रिचर्ड निक्सन ने खत्म किया, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने। सो ऐसा नहीं है कि एक वॉर स्टार्ट हुआ है और एक सर्टेन स्टेट में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट आता है, तो वहां पर वॉर जो होता है वो रुक जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, उसका एड एड का जो अमाउंट होता है वो कम हो सकता है, बढ़ सकता है, या फिर से अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट एंड उसके जो एडवाइजर्स होते हैं उनमें कुछ चेंज हो सकती है। बट हम मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को देखें, पेंटागन को देखें, हम स्टेट डिपार्टमेंट को देखें, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, तो उनकी जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्योर है वो तो एकदम कंटिन्यू ही चलेगी। जस्ट लाइक अगर हम एंटनी ब्लिंकन के बारे में बात करें, तो एंटनी ब्लिंकन इज अ करियर डिप्लोमैट। वो पिछले 20 से 25 साल में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में है। फिर से अगर हम इससे पहले यूएस डोनाल्ड ट्रंप के अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, माइक पॉम्पियो, तो माइक पॉम्पियो वाज आल्सो अ करियर डिप्लोमैट। वो सीआईए का डायरेक्टर रह चुका है। सो यहाँ पर उसकी जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो तो एकदम कंटिन्यू ही रहेगी। वैसे ही हम इराक वॉर को भी ले सकते हैं। इराक वॉर को एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट स्टार्ट किया था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, लेकिन उसे कैरी फॉरवर्ड किया एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने। वैसे ही हम अफगानिस्तान क्राइसिस को भी ले सकते हैं, अफगानिस्तान वॉर को, इंड्यूरिंग फ्रीडम को। तो उसमें भी क्या होता है, एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट स्टार्ट करता है एंड कैरी फॉरवर्ड करता है बराक ओबामा, जो कि डेमोक्रेट होता है, फिर से उसे आगे की ओर लेकर जाता है रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और खत्म करता है डेमोक्रेट। सो इट्स ऑल अबाउट देयर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्योर एंड वहां की जो 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 जनता होती है, जो वहां की पार्लियामेंट जो कांग्रेस होती है, वो क्या डिसाइड लेती है। एंड प्रेसिडेंसी चेंज होने से वॉर जो होता है, अकॉर्डिंग टू मी, सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। सो नेक्स्ट वन। Adnal, you have any further question or any counter argument? You can raise your own argument. No, I think I actually in my question only I posed that what might or might not change. So according to him, nothing is going to change, and the continuation is going to happen. So I am satisfied with the answer. So thanks a lot, Rajkamal. I think we don't have any further questions with the audience. So thanks a lot for joining us in Inquiry Connect. It's really a good privilege to host you as a keynote speaker on this topic, Russia and the Ukraine implication. In the last, I have one question left Yeah, for my side. I have to ask for this. Basically, when we are talking about conflict, there are three sides of conflict that we called as ABC triangle or conflict tree and everything that we have recorded and manageable by the conflict management tools. But in the case of Ukraine Russia, it's not a war that end up within a days. It's take up to mhm. 2 hours, 2 years from now. I think there should be a particular plan of policy or in terms of trade, like defense trade, it going to more further to upcoming 2026 to 2027. What your opinion about the business trade regarding defense sector, at most of the artilleries and
things were sorted by the US government and the European countries also giving the defense equipments to Ukraine, and further the role of China in itself, because has the hegemonical power like China is going to propound itself in the Asiatic region. It's a very great thing to be nurturing or to talk about how China's role in this conflict is going to be serious, is going to be take out, is going to be see out. What is the main causes that become China more helpful towards Russia? So, so you are talking about military alliance or Russia-China axis. Is this your question? My question is all about defense trade and Hmm? how defense trade with Ukraine and the European countries and the Chinese and the Russians became Hmm? a major role play in this war. So, first of all, Ukraine. So, Ukraine. eh, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन जो है यूक्रेनियन जो क्राइसिस जो चल रहा है वो जस्ट लाइक हमने पहले ही बात किया कि वो एड से के द्वारा ही उनकी जो वॉर जो होता है वॉर जो चल रही है पूरी दिस कंटिन्यूएशन जो उनके 2 साल से वो लड़ रहे हैं वो यूरोपियंस लीडर्स जो होते हैं या फिर से अमेरिकन जो कांग्रेस होती है वो सैंक्शंस करती है मनी उसके द्वारा चल रहा है लेकिन आपने जो रशिया के बारे में बात किया तो रशिया एंड चाइना के मिलिट्री एक्सेस के बारे में जो बात किया सो रशिया एंड जो चाइनीज मिलिट्री एक्सेस अभी अगर हम ऑफिशियल डाटा के बारे में बात करें तो वहां पर कोई एक एक भी मतलब कि ऑफिशियल सोर्सेज नहीं है जो कि ये बता सके कि रशिया एंड चाइना में कोई भी मिलिट्री अलायंस या कोई भी वॉर इक्विपमेंट जो है या फिर से एक छोटी सी गन जो भी है वो चाइना ने एक्सपोर्ट किया रशिया को हाँ नॉर्थ कोरिया को लेकर के है नॉर्थ कोरिया ईरान को लेकर के है ईरान ने ड्रोन रशिया को सेंड किया एक्सपोर्ट किया एंड नॉर्थ कोरिया ने भी बहुत सारी वॉर एमुनिशन जो है वो होता है वो उसे वो एक्सपोर्ट किया रशिया को बट यहाँ पर जस्ट लाइक आपने जो बात किया चाइना एंड रशिया के बारे में अगर यहाँ पर अगर मेरा मानना है कि अगर चाइना एंड रशिया अगर एक मिलिट्री अलायंस की तरफ मूव करते हैं जो कि वेस्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं चाहेगा जो कि नाइटमेयर हो जाएगा तो अगर चाइना एंड रशिया जो एक मिलिट्री अलायंस की तरफ मूव करते हैं एंड वो मिलिट्री अलायंस बना लेते हैं सो यहाँ पर एक आईआर में इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नया से हम बोल सकते हैं एक चैप्टर का स्टार्ट हो जाएगा एंड जो एक कोल्ड वॉर जो इरा था टेंशंस था जो कि एक पीक पर गया था हम बता सकते सोवियत यूनियन एंड यूएस इसमें वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा आर्म्स रेस हो जाएगा मिलिट्री रेस जो न्यूक्लियर रेस जो होता है स्पेस रेस एवरीथिंग स्टार्ट हो जाएंगी एंड बिल्कुल भी ये वेस्ट के लीडर्स जो होते हैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे दैट्स वाई अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम ने अपने जो जो मिलिट्री पैकेज है यूक्रेन को लेकर के उसे वो धीरे कर दिया है मतलब जहां पर पहले वो इनिशियल जो स्टेजेस ऑफ वॉर वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ गया एंड यूएसएस कांग्रेस जो भी है उनका भी वो भी कांग्रेस जो यूएस कांग्रेस जो है वो उनका भी मिलिट्री एड जो होता है पैकेज वो भी उस पर वो एक तरीका से धीरे धीरे उनका हो गया वो बिल्कुल भी पैसा सेंड नहीं करना चाहती अमेरिकन पीपल एक फ्रांस के बारे में बात करें स्पेन के बारे में बात करें पोर्टुगल इटली के बारे में बात करें जो कि जॉर्जिया मेलोनी जो कि फार राइट वो एक्सकेलेट बिल्कुल नहीं करना चाहता है क्योंकि जो यूक्रेन में क्या है क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो दिसंबर 2022 में एक दिन ऐसा हुआ था कि रशियन जो मिसाइल थे वो पोलैंड में गिरा था तो बहुत सारे लोग ऐसा डर था कि आर्टिकल 5 जो है नाटो का वो एक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सो यहाँ पर सस्पिशन
क्वेश्चन था कि बट यहाँ पर जो भी रशियन जो मिलिट्री जो ग्रुप होता है वो वेस्ट को बताता है कि चीजें होती हैं एंड रशिया एंड चाइनीज मिलिट्री अलायंस बिल्कुल भी वेस्ट जो होता है वो टॉलरेट नहीं करेगा एंड अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो दिस इज अ नाइटमेयर फॉर यूरोप एंड वेस्ट. Before we military treaty, it's become a threat to India as well. We have to think from our perspective as well that it's not about US, it's all about the regional stability in South Asia. When we talk about is there any Russian referendums? Choice referendum is basically basis on how your stand is towards to the something. According to Indian geopolitical perspective, it's never be happened to because it's treaty from 1971 as well, and to till now in the regime of Vladimir Putin in the our current PM. So we have to think on the basis of how the geopolitical and this Indo-Pacific area is also giving some implication to the Russian-Ukraine war as well. सो आपने बात किया कि रशिया जो चाइनीज जो मिलिट्री एक्सिस बनेंगी उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया कांट अफोर्ड, रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो इंडिया को एनिमी बनाए बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट. अगर हम रशियन जस्ट लाइक हम बोले तो रशिया को डिजीज हुआ है. अगर आप आईआर में एक टॉपिक एक एक एक्रोनेम होता है डच डिजीज. डच डिजीज उसे बोलते हैं, उस कंट्री को बोलते हैं कि वो कंट्री में जो कॉमोडिटी एक्सपोर्टिंग कॉमोडिटी होता है वो बस डच डिजीज हुआ है. मीन्स बस ऑयल एंड गैस, ईरान को बोले, कुवैत को बोले, इराक को बोले, यूएई को बोले, इन सारी कंट्रीज को डच डिजीज हुआ है. सेम रशिया को भी डच डिजीज हुआ है. ऑयल एंड गैस ही उनका मेन एक्सपोर्टिंग कॉमोडिटीज है और उनका जो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, फॉरेन मनी जो होता है वो बिल्कुल इसी कॉमोडिटी से आता है. और इस कॉमोडिटी के मेन जो इम्पोर्टर है, मेन जो बायर है, कंज्यूमर है, वो इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया. सो रशियन जो लीडरशिप है इसे वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगी कि अगर वो चाइना एंड रशिया का में एक मिलिट्री अलायंस होता है एंड वो अगर इंडिया के अगेंस्ट होता है, अगर उसे वो कंटेन करने के लिए, अगर वो उसे क्वाड को कंटेन करने के लिए होता है या फिर से ताइवान को अगर चाइना अगर अपने में मिलाने की कोशिश करता है या अगर वो यूनाइटेड चाइना बनाना चाहता है तो, या फिर से जापान पर नजर रखने के लिए या फिर साउथ कोरिया पर या साउथ ईस्ट एशिया की ओर हम जाए या ईस्ट एशिया यानी साउथ कोरिया पर जाए तो समझ में आता है. बट एक एशियन जायंट को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं सो इट तो यहाँ पर एक विजन की कमी नजर आएगी रशियन लीडरशिप में. अगर रशियन लीडरशिप अगर इंडिया के अगेंस्ट कोई अगर ट्रीटी करता है चाइना के साथ तो, बिकॉज करेंटली इंडिया इज अ ब्लू हेड बॉय ऑफ वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स. ये वेस्ट को भी डील कर रहा है एंड रशिया चाइना को भी डील कर रहा है. चाइना को अगर हम बस गलवान वाला अगर इंसिडेंट को छोड़ दे तो इंडिया बहुत अच्छे से डील कर रहा था चाइना को. इंडिया को हम देख सकते हैं कि जो भी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो हमारे घरों में थी. हर एक लोग चाइनीज मोबाइल फोन्स, चाइनीज फ्रिज, चाइनीज एसी का इस्तेमाल कर रहा था. तो चाइनीज जो जो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था वो इंडियन मार्केट में छाया हुआ था. तो आज की डेट में भी हम बोले तो हम चाइना के मतलब हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग कोई पार्टनर है तो चाइना है. हम चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, अबव $80 बिलियन. सो यहाँ पर हम चाइना को अगर हम बोल दे गवर्नमेंट लेवल पर तो गवर्नमेंट लेवल पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. बट अगर हम कंज्यूमर के अगर नाते अगर देखें चाइना को तो आज के डेट में भी हम चाइनीज मोबाइल का यूज कर रहे हैं, चाइनीज रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं. सो चाइनीज बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया के अगेंस्ट एक मिलिट्री अलायंस बनाना. सो वो रशिया एंड चाइना बहुत नहीं कर सकते हैं. I think Adnal have any question. I think so. She raise a या hand. गो ऑन. uh, the war has become very protracted, as in it has been stretched for too long.
And initially, when it began, it was seen as an asymmetrical warfare in terms of Ukraine being very less powerful and very small in comparison to Russian giantness in terms of its military capability. So the war being stretched for so long, does this signify that all along we have all overestimated the Russian military power? And it's no longer the military and artillery hub that it used to be, or as we have seen it being a former superpower. Yeah. your question is आप जैसा कि बोल रही हैं कि जो रशिया का जो एम्यूनिशंस है, जो एयर पावर है, वो बिल्कुल भी एक सुपर पावर की कैटेगरी में नहीं आता। एंड 2 साल से वो एक इंफीरियर जो पावर जो कंट्री है, स्टेट जो है यूक्रेन, उस पर वो बिल्कुल भी उसको एनिहिलेट नहीं कर पाया है, उसे जीत नहीं पाया है एंड वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बट आप अगर आप दूसरे नजरिए से अगर इसको देखें तो यूक्रेन जो होता है, यूक्रेन के पास कोई मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है एंड यूक्रेन 2 साल से वेस्टर्न वेपन्स के सहारे ही लड़ रहा है। जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स उसे अपना अब्राम टैंक्स दे रहा है, यूनाइटेड किंगडम अपना सेंचुरियन टैंक्स दे रहा है, फिर से अगर हम जर्मनी के बारे में बात करें तो अपना लियोपोल्ड टैंक्स दे रहा है, स्पेन जो है अपना राइफल दे रहा है एंड पोर्टुगल दे रहा है। फिर से अगर हम बेल्जियम के बारे में बात करें तो बेल्जियम अपना बुलेट प्रूफ जैकेट जो वन ऑफ द बेस्ट होता है वो सप्लाई कर रहा है। सो यूक्रेन में यहाँ पर वेस्टर्न वेपन्स का बॉम्बार्डमेंट किया गया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से अगेंस्ट रशियन सोल्जर्स। एंड रशिया के बारे में अगर हम बात करें तो रशिया के बारे में अगर हम ऑफिशियली रिपोर्ट देखें तो सिर्फ वो ईरान से जो ड्रोन जो होता है सिर्फ वही खरीदा है एंड नॉर्थ कोरिया से कुछ एम्यूनिशंस खरीदा है। एंड तो आप कैसे रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसे आप इग्नोर कर सकती हैं। जस्ट लाइक रशिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस thousands of tanks a year and hundreds of helicopters a year and hundreds of fighter aircraft a year। just like Su-57 को अगर हम देखें, सुखोई Su-57 जो उसका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसको अगर आप आरटी की वेबसाइट को देखें, स्पुतनिक को देखें तो वो उसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड फिर से मिग 25 को देखें, मिग 35 को देखें, मिग 29 को देखें, जो कि इंडिया का बैकबोन है हम बोल सकते हैं। मिग जो कि सुखोई Su-30 MKI वो रशियन ओरिजिन ही है। हम इंडियन एयरफोर्स में अच्छा खासा इक्विप किए हैं, मिग 29 को किए हैं। सो यहाँ पर रशिया का एक मिलिट्रियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ही ह्यूज है। दैट्स वाई 2 साल से वो अपना युद्ध जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ाए हुए है। अगर अगर हम दूसरे साइड को भी देखें तो रशिया सिर्फ एक फ्रंट पे ही नहीं कर रहा है। अगर आप रशिया के पूरी तरीके से देखें तो बाल्टिक सी में भी उसकी अच्छी खासी मूवमेंट बढ़ गई है। अगर आप उसके एक बॉम्बर है उस पर अगर आप ध्यान दें तो उसकी B-2 बॉम्बर हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स की है, उसका शायद एंटोनोव जो होता है, एंटोनोव जो एक बॉम्बर है न्यूक्लियर बॉम्बर, उससे वो डेली निगरानी रख रहा है, बाल्टिक सी में रख रहा है, फिर से नॉर्डिक सी में रख रहा है जो कि नॉर्वे के पास है, डेनमार्क के पास है। सो उसके पास बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटी है। इसके बावजूद आप सोच करके देखो, वॉर होने के बावजूद रशिया जो होता है वो इंडिया जैसी मेजर कंट्रीज को S-400 की सप्लाई कर रहा है। सो उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स शानदार है, वन ऑफ द बेस्ट है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि थोड़ी सी जस्ट लाइक वेस्टर्न स्कॉलर्स का कहना है कि थोड़ी सी इंफीरियर है वेस्ट के अगेंस्ट। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें तो जो कि वेस्ट का जो एक फाइटर जेट, वेस्ट में का जो एक सॉरी फाइटर जेट नहीं, हम एक ड्रोन के बारे में बात करें, प्रीडेटर ड्रोन जो कि इंडिया खरीदा है यूनाइटेड स्टेट्स से। प्रीडेटर ड्रोन जो होता है वो सुखोई Su-30 MKI से ज्यादा महंगे है, कॉस्टली है। तो वेस्टर्न वेपन्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, रशियन वेपन्स जो होते हैं उससे हम बोल सकते हैं लिस्ट एक्सपेंसिव है। दैट्स व्हाई इंडिया वो प्रीफर करता है अपनी आर्मरी में उसे शामिल करने का। सो हम उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड अभी भी अगर हम देखें तो स्टिल डजन्स ऑफ कंट्रीज जो है वो रशियन वेपन्स को खरीदना चाहती हैं। जस्ट लाइक इंडोनेशिया हुआ, फिलीपींस जो हुआ, फिर से लीबिया जो हुआ, हाल में खरीदा था, इजिप्ट जो हुआ S-400 खरीदना चाहता है,
कतर जो होता है, सऊदी अरेबिया, यूएई खरीदना चाहता है। सो यहाँ की दम है, तभी वो 2 साल से युद्ध में टिके हुए हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होता। अदरवाइज उनकी अगर आप टेरिटरी देने के बावजूद आप खेरसौन को नहीं रख पाते, आप जापोरिजिया को नहीं रख पाते, अब बेलगोरोद में अटैक हो जा रहा है, आप उसे अटैक को नहीं रुकते। एक एक वहां पर बोल सकते हैं कि टसल हो रहा है, एक एक वहां पर बोल सकते हैं कि वॉर ऑफ एट्रिशन के बीच है। बट यहाँ पर अगर हम वेपन्स में हम देखें तो वेस्टर्न वेपन्स के सामने रशियन वेपन्स की कोई हम बोल दे तो सके कि वो इंफीरियर है। हाँ, इनिशियल जो फरवरी में अटैक किया था 2022 में, उस टाइम बहुत सारी जो कि टैंक्स था, रशियन जो टैंक्स था वो युद्ध मैदान में ही, वॉरफील्ड बैटल ग्राउंड में ही रशियन जो सोल्जर्स थे वो बहुत जगह पर वो अगर वो बैटल हार जा रहे थे तो चले जा रहे थे, क्योंकि वो 40 साल 50 साल पुराना था। अगर हम इंडिया में भी देखें तो मिग 21 को हम स्टिल यूज करते हैं, जो कि 1962 में बना था और इंडिया में 1966 में आना स्टार्ट हुआ था। मीन्स हम 50 साल पुरानी एयरक्राफ्ट का स्टिल यूज कर रहे हैं। तो रशिया में भी सोवियत टाइम्स का बहुत ज्यादा टैंक्स था, फाइटर एयरक्राफ्ट था, हेलीकॉप्टर्स था, तो बस वो खत्म हो रहा है इसमें, मतलब कि और वो न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। स्टील आप सिपरी की रिपोर्ट देखो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस अगर आर्म्स एंड का है तो रशिया है, तो अगर उसकी इंफीरियरिटी होती तो इतने सारे कंट्रीज कैसे खरीद पाता, और खास करके हमारी अपनी कंट्री इंडिया। Thank you, Rajkamal, for giving us your time as well. You deliver so politely, and every answer you're giving so wonderfully and explain so good.